Hello and good afternoon and welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar. I am Sanskriti Jain from Sajan's Welfare Society. Sajan Welfare Society is mainly focused to empower women and make them realize and successful in the society. Sajan's Welfare Society mission is to make women self-reliant with their own identity and career with academic preparation and to make them realize their importance in society, in which Sajans is continuously organizing webinars and seminars which provides variety of information for women as well as young ladies. Today we have two special guest speakers here. Our second guest speaker is Mrs. Shivangi Jain, founder and CEO of MPeeps. It provides asset tracking solution in Bhopal. She is the winner of Nari Shakti Award and has received the Women in Power Award for outstanding performance in entrepreneurship on International Women's Day 2020. She is also the vice president of an NGO called Approach House. First, I want to say something to our audience. Like, they can start asking their questions in only chat box. So you can ask anything you want to ask guests. Okay, so you can type your questions in chat box. Okay. Hi, hello everyone. My name is Shivangi. So I think I've shared a presentation also with you, Sanskriti. Yeah, exactly. Okay. So I will be talking. Okay. So I'm Shivangi Jain, founder and CEO of MPeeps. And I would really like to thank Shrajan Welfare Society for inviting me today. And I'm really delighted to interact with all the women and beautiful ladies out there. So let's start. So I think I'm going to take this like, first I'll be talking about my journey. Then I'll be talking about few tips for women who really want to have a good startup and who want to explore the world of entrepreneurship. And then we'll be breaking some stereotypes and myths about entrepreneurship. So let me start with myself. So I started my company 3 years ago. I'm from Bhopal only, and I did my schooling from here and went to Dehradun for to study automotive design engineering from University of Petroleum and Energy Studies. Since childhood only, I was pretty excited about speaking and saying things. मुझे बोलना बहुत पसंद था. लोग आसपास बोलते थे कि यार किसी को पेंटिंग आती है, किसी को डांसिंग आती है. लोग मुझसे पूछते थे तुम्हारा स्किल क्या है, तो मुझे लगता था आई थिंक द ओनली थिंग आई कैन डू इज टू स्पीक. मुझे बात करना आता था. मुझे ये नहीं पता था उस वक्त कि इस चीज को मैं कैसे एक मॉनिटरी गेन प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाऊंगी. सो दैट आई रियलाइज प्रिटी लेटर इन माई लाइफ. When I started my college, I went to study automotive design engineering from UPS Dehradun, which is a very male-dominated industry. Automobile एक ऐसी चीज है जो सिर्फ लड़कों को पसंद होती है, गाड़ी लड़कों को पसंद होती है. Exactly. मैं आई थिंक हम 70 लोगों में सिर्फ 6 लड़कियां थे. मेरी क्लास में वी वर जस्ट 6. तो मुझे उस टाइम से ही समझ में आ गया था कि जेंडर बायस क्या होता है. और उसी टाइम से हमारी कॉलेज के फैकल्टी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने ही दिमाग में डाल दिया था कि ओके यू आर अ वुमन, यू आर अ गर्ल, दिस इज नॉट योर लाइन ऑफ फील्ड. ये आपकी लाइन नहीं है. आप ठीक है, आप लोग मुझसे पूछते थे आप क्यों गाड़ी बनाना चाहते हो यार, आपको क्यों गाड़ी बनानी है. एंड आई यूज्ड टू क्वेश्चन देम दैट आई डोंट थिंक this defines my gender, defines what I want to do in life, right? So during college I faced this a lot. बहुत बेसिक यार, कारपेंट्री की वर्कशॉप होती है जिसमें हमको ना लकड़ी घिसकर कारपेंट्री का कुछ बनाना पड़ता था एक. एंड हम 6 लड़कियां होते थे, तो लड़के जल्दी जल्दी खत्म करके चले जाते थे, हम लड़कियां लगे रहते थे उसमें. सो a lot of guys used to come and they used to say that अरे हेल्प कर दे क्या तुम्हारी, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. They used to pity us, which made me think यार दया नहीं चाहिए आपकी. We don't need your pity, we don't need your sympathies. What we need is to be somewhere treated equally. We are of the same class, we are paying the same fees, we are wearing the same uniform, learning from the same books.
but why this gender bias? And that prompted me somewhere. Even in my जब हम दोस्त लोग घूमने जाते थे, अरे यार वो तो क्या ही बोलेगी यार, वो तो लड़की है यार, शी मस्ट बी डम, हाउ डज शी नो यार वो कार्बोरेटर में कचरा कैसे घुस गया, और लड़की को कैसे पता क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, पिस्टन क्या होता है, वो लड़की को क्या पता. सो आई हैव फेस दिस एंड आई यूज्ड टू फील एंग्री. मुझे अंदर से गुस्सा आता था यार. आई रियली नीड टू स्पीक आउट समडे कि व्हाई यू आर डूइंग दिस. दिस इज वी आर वन यूनिट, राइट? बट लोगों ने ऐसा किया है. देन आई मूव्ड ऑन. सिंस इट वाज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, इसका ज्यादा इम्पैक्ट मुझे कॉलेज से ज्यादा इंडस्ट्री में फील हुआ. आई स्टार्टेड वर्किंग विद टाटा मोटर्स. वहां पे इंटर्नशिप कर रही थी. वहां पर इंजन डिपार्टमेंट में मेरा प्रोजेक्ट था. यू वोंट बिलीव, इट वाज अ 25 एकड़ फुल प्लॉट. लाइक दे हैड अ प्रॉपर प्रोजेक्ट देयर, बट वहां पर एक फीमेल वॉशरूम नहीं था. 25 एकड़ के एरिया में, 25 एकड़ के एरिया में एक फीमेल वॉशरूम नहीं था. एंड फॉर मी टू यूज द वॉशरूम, आई यूज टू गो 5 किलोमीटर्स इन अ कार जस्ट टू पी. सो दीज जेंडर बायस, और ये जो मैंने डिविजन देखा ना, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा. वील हैव टू कम अप विथ समथिंग एल्स. दुनिया तो दबाती है, दबाती आई है और दबाती रहेगी. I quit. I joined L&T 3 I think 2015 में, and one fine day it was just not serving the purpose of my life, and I quit and I started my own company. कंपनी स्टार्ट करने में बहुत चीजों को फेस किया है जो पहले नहीं किया था. बट आई थिंक जो पहली चीजें फेस करी थी ना, उससे जो एड्रेलिन रश आया था, उससे जो मोटिवेशन आई थी, उससे जो पैशन आया था ना, वो यहाँ पर फ्यूल की तरह यूज हुआ है. And I would really like to share my journey, and through my journey I want to share few tips to start with. Sanskriti, you have my presentation? Yeah. Yeah, can you start sharing? Yeah. You can see, is this visible? Shivangi ma'am, is the presentation visible? Yes, it is. Yeah, it is visible. Yeah. Come to the first slide. Okay. Come to the second slide. All right. So I think I have told you about myself. I'm Shivangi Jain. I was a sales head at L&T Vadodara. Then I started Track Always. I'm a founder. I recently won Nari Shakti Award last year, as Sanskriti said. We'll be discussing about it later on. Let's talk important things first. Yeah, next slide, please. Okay. So let's talk कि क्या टिप्स हो सकती हैं. मैं ये हिंदी में ही बताऊंगी, इंग्लिश में भी बता सकती हूँ. I think which language you people are comfortable with, I'll go ahead with that. Right? Let's थोड़ा दोनों कर लेते हैं. So the first thing is know where to focus energy and time. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हम लड़कियां ना बाय नेचर बहुत डिस्ट्रैक्टिव सी होती है ना. वी थोड़े देर में हमें शूज अच्छा लगता है, फिर थोड़ी देर में हमें नेल पेंट अच्छा लगता है, या हमें कुछ वी स्टार्ट लाइकिंग सम न्यू ट्रेंड, राइट? वी आर वेरी आई वुड से चंचल इज द राइट वर्ड, राइट? हम बहुत चंचल मन के होते हैं. तो इस चंचल मन को ना सबसे पहले अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना है ना, तो इसको सबसे पहले कंट्रोल करना है. नो वेयर टू फोकस योर एनर्जी एंड टाइम. एनर्जी और आपका टाइम तो उतना ही है ना, आपके शरीर में उतनी एनर्जी उतना ही टाइम है. आप उसको कैसे फोकस करते हो वो इंपॉर्टेंट है. आपको हैमर करेक्ट जगह पे हिट करना है. संस्कृति, आई जस्ट नीड जस्ट अ सेकेंड. या दिस फाइन. या सो यू नीड टू नो हैमर को कहाँ हिट करोगे. अगर आप सही जगह पे हथौड़ा मारोगे ना, तब जाके चीज टूटेगी. देन यू विल रीच योर गोल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे बहुत लोग काम करते हैं, बट यू नीड टू फोकस कि आपका मेन बिगर पिक्चर किस में दिख रही है, आपकी लाइफ कौन सी चीज चेंज कर देगी. आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा. यू नीड टू हैव दैट एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्टिविटी कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी 1 घंटा यहाँ दूं, 2 घंटा यहाँ दूं, आगे 365 दिन के बाद मेरे इतने घंटे बनकर कहाँ पर जा रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. what you will receive if you focus on one thing, that is very important.
ये आपका एंड गोल है, तो आपको अपने एंड गोल को सोचते हुए ही आज से उतने मिनट या उतनी एनर्जी खर्च करनी चालू कर देनी चाहिए. So that is first thing I would like to say. Second, come to the second slide, Sanskriti. Yeah, next, yeah. Learn how to hold yourself accountable. Accountability is very important. अगर आप अकाउंटेबल ही नहीं होगे, अगर आप ब्लेम गेम्स ही खेलते रहोगे पूरे टाइम ना, तो यू विल नेवर रियलाइज कि आपकी गलतियां क्या थी और आपको क्या अपने आप में बदलने की जरूरत है. हम 99% ना अपने आप से झूठ बोलते हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आप जब रोज सुबह मिरर में जाकर अपने आप को देखते हो ना, 99% आप झूठ बोलते हो कि नहीं यार ये तो सही है, ये ठीक है, ये बाल सफेद हो रहे हैं ना, ये ठीक हो जाएगा, इट विल बी फाइन. राइट? यू लाई टू योरसेल्फ टू प्रोक्रेस्टिनेट. हम ह्यूमन, ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम चीजें डिले करने के लिए खुद से झूठ बोलते हैं. स्पेसिफिकली जॉब्स में एक फिक्स इनकम जब आ रही होती है ना हमें, तो वी थिंक यार बॉस ने चिल्ला दे, कोई बात नहीं यार, ये तो चलता है, इट्स फाइन, आई लाइक दिस जॉब, दिस इज स्टेबल फॉर मी. बट फिर कुछ टाइम किसी कोवर्कर ने कुछ बोल दिया, आई डोंट लाइक दिस प्लेस, 5 मिनट बाद यू विल बी लाइक नहीं यार वो पैसे तो आ रहे हैं ना मेरे. यू बिकम कॉम्प्लिसेंट. ये कॉम्प्लिसेंसी बहुत गलत है. अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड तो करो, फील तो करो कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, फील तो करो कि तुम्हें वो फ्रीडम चाहिए लाइफ में, तुम्हें इस जॉब को छोड़ना है. फिक्स्ड इनकम, अपने गोल्स पे फोकस करो. एक बहुत छोटी सी चीज सिखाई जाती थी हमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, जिसको हम कहते थे रिवर्स इंजीनियरिंग. जैसे कि ये फोन है, राइट? इस फोन को मैं स्क्रैच से बना सकती हूँ, पहला तरीका. दूसरा तरीका, इस फोन को मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकती हूँ. उसको पहले तोड़ूंगी, खोलूंगी, देखूंगी इसमें क्या है, फिर वो पार्ट्स लाके मार्केट से वैसे ही बनाने की कोशिश करूंगी. राइट? आपको अपने गोल्स के साथ यही करना है. आपके गोल्स को लो, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो, देखो आपको कितने साल में उसको रीच करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अर्न 3 करोड़ रुपीज इन 5 years. 5 साल में कितने दिन होते हैं? 365 इंटू 5 इतने दिन होते हैं. घंटे कितने होते हैं? इंटू 24. उन सबको 3 करोड़ रुपए से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा आपको एक दिन में कितना पैसा कमाना है 5 साल बाद 3 करोड़ रुपए होने के लिए. सो दैट रिवर्स इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सिर्फ तभी आती है जब आप अकाउंटेबल होते हो अपनी चीजों को लेकर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Sanskriti, next slide please. Yeah. It's Yeah. not visible. Never fear asking for help. Yeah, it's visible. It's visible. Sanskriti, is the session going on fine, or do I Yeah. need to change something? No, it's going fine. Okay, all right. So third number is never fear asking for help. I am really bad at this. I am telling you, I'm bad at this. I hate asking for help, especially जब मुझे कॉलेज में बोला जाता था ना कि अरे ये हम कर देंगे, तो मुझे हमेशा से लगता है कि कोई मदद ना पीटी के लिए कर रहा है, अरे ये तो बेचारी अबला है, इसकी मदद कर देते हैं. सो आई ऑलवेज हैड दिस फियर कि यार कहीं ये मुझे वो सोच कर तो नहीं मना कर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई ऑलवेज यूज टू डिफेंड माई सेल्फ. ये डिफेंसिव नेचर आ जाता है एक टाइम के बाद जब आपको कोई ऐसा ट्रीट करे. बट यू नो, इफ यू रियली वांट टू बिल्ड योर ओन एम्पायर, अगर आप एक्चुअली बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप इज वन थिंग जो आप अकेले नहीं कर सकते एक कमरे में बैठ के. राइट? आपको टीम चाहिए होगी, आपको क्लाइंट्स चाहिए होंगे, राइट? आपको वेंडर्स चाहिए होंगे, आपको सपोर्ट चाहिए होगा. यू नीड टू हैव योर ओन सपोर्ट सिस्टम, एंड फॉर दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट रूम एंड स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प. एंड trust me, when I'm saying this out loud, I'm saying this to myself also, because I never do it. It's bad. 24 आवर्स ही है यार हमारे पास, 24 घंटे हैं. इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है. क्योंकि क्या होता है ना, बहुत छोटी क्या होता है ना, हमको लगता है हम सब कर लेंगे, विल डू एवरीथिंग. कर लेंगे यार, हम सब कर लेंगे. दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो इंसान नहीं सीख के कर सकता. लेकिन अंडरस्टैंड कि वो चीज सीख के करने में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो टाइम बर्बाद हो रहा है ना, वो शायद आप किसी और से करा के जल्दी वहां पहुंच जाते हैं. बहुत सिंपल सी चीज होती है डेटा एंट्री. मेरे ऑफिस में कई बार होती है डेटा एंट्री. अगर मैं डेटा एंट्री करने के लिए बैठ जाऊंगी तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में कौन सोचेगा? राइट? हु विल थिंक अबाउट द क्रिएटिव आइडियाज ऑफ गोइंग फर्दर? तो इस चीज को प्लीज समझ के रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो यार. आप बाहुबली हो, आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन करना नहीं है.
जब दुनिया में इतने सारे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार है, when they are there for you, then start asking for help. That is important. Next, Sanskriti. Don't be afraid to fail. So, failure is the key. I'll tell you why. क्या होता है कि just a second. I want to read this also. My screen is not. Yeah. By fearing failure, women often don't leap into entrepreneurship. A famous and successful female entrepreneurs such as Coco Chanel, Ruth Handler, Oprah Winfrey, Sarah Blakely, and many others allowed failure to hold them. Can you just minimize it a little, Sanskriti? The size of it a little more. That's it. Perfect. Yes. Yeah. To allowed failure to hold them back, our world would be an entirely different place. See, I'll tell you why failure is more important than success. Success is not a constant thing. आपको जरूरी नहीं है आप आज उठो आपको जो चीज आप चाहते हो वो हो जाए, कल उठो जो चीज आप चाहते हो वो हो जाए, राइट? तो सक्सेस कांस्टेंट नहीं है, बट फेलियर 99% आप 90% फेलियर कांस्टेंट है. तो क्या होता है ना, जब आप सक्सेसफुल पहली बार में हो जाते हो ना, तो उसके बाद जब सेकेंड टाइम आपको नहीं मिलती सक्सेस, तो यू मिस आउट ऑन दैट एंड यू फील कि यार ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया. आपको फेलियर एक्सपीरियंस देता है, और वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग्स के लिए. अगर वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा ना, तो सक्सेस का मजा भी नहीं ले पाओगे. सक्सेस जब मिलेगी ना, तो आपको फील भी नहीं होगा कि ओह वी गॉट इट. हाउ? सो यू नीड टू फेल. एंड या एक्सपीरियंस जो आपको फेलियर से मिलेगा ना, ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा. इवन आफ्टर रीचिंग मेनी सक्सेसेस ना, फेलियर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको लाइफ में चीजें और आगे लेकर आपके एम्बिशंस को और बढ़ाएगा. इट विल शो यू बिगर पिक्चर्स, आई फील. नेक्स्ट, संस्कृति. ऑलवेज बी कमिटेड. सी आई टेल यू, मैंने शुरुआत में बोला था कि वी गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली इन टर्म्स ऑफ थिंग्स, कि अभी आज पेंटिंग करने का मन है तो कल कथक सीखेंगे, राइट? लॉट ऑफ थिंग्स ऑन आवर प्लेट ऑलवेज. सो कमिटमेंट और फोकस जो आपको अपने बिजनेस के लिए लगेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वो जो कमिटमेंट है ना, वो आपकी लाइफ में किसी भी स्किल या किसी भी आपने कोई हॉबी ली होगी ना, उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए. यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ रिगार्डिंग दैट कमिटमेंट. और हमारे अंदर ना एक छोटी सी चीज होती है, ब्रेन कंडीशनिंग. बचपन से क्या होता है ना, वी आर नॉट, हमारी अपब्रिंगिंग उतनी कॉन्फिडेंस से नहीं की जाती. जनरली हम लोगों को चीजों का वैलिडेशन या अप्रूवल लगता है. बचपन से अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है तो अरे अप्रूवल चाहिए, मतलब मम्मी पापा का अप्रूवल चाहिए, बड़े भाई बहन का अप्रूवल चाहिए, राइट? किसी का वैलिडेशन चाहिए. कपड़े खरीदने जाना है, अरे ये वाला खरीदें या ये वाला खरीदें. ये वी आर नेवर टॉट कि खुद के डिसीजंस कैसे लेने एक उम्र तक. कई जगहों में तो शादी तक, उम्र तक भी नहीं, शादी से पहले उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, शादी के बाद लड़की का हस्बैंड डिसाइड करता है उसको क्या करना है. तो वो कंट्रोल हमें सिखाया नहीं गया. तो जब आप कमिटेड रहोगे ना अपने गोल से, तो आपको ये बाहर के वैलिडेशन और अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ना कि आप कर लोगे. देन यू डोंट नीड एनीवन टू से दैट टू यू. यू योरसेल्फ इज केपेबल इनफ फॉर दैट. ब्रेन कंडीशनिंग जो मैंने बताया था, I'll speak about it in the next slide. संस्कृति, next slide please. You have to believe in yourself before anyone else. मैं एक स्टोरी बताती हूँ जब भी इस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ. आई थिंक काफी लोगों ने सुनी भी होगी, बट आई वुड रियली लाइक टू रिपीट दैट स्टोरी. आपने हाथी के छोटे बच्चे को देखा है? बहुत क्यूट होता है. उसको जब वो पैदा होता है ना, उसको बहुत चेन्स में बांध के रखते हैं, एकदम प्रॉपर चेन में यहाँ से बांध के रखते हैं, सो दैट वो इधर उधर ना जा पाए. आपने महावत देखे होंगे, जो हाथी को चराते हैं, महावत जो होते हैं, वो बड़ी बड़ी चेन्स में उनको कस के
बांध के रखते हैं। लेकिन जो फुल ग्रोन हाथी होता है ना, जब हाथी बड़ा हो चुका होता है, फुल ग्रोन स्टेज में जो हाथी अडल्ट हाथी होता है, उसको किसी भी चेन से नहीं बांध के रखते हैं, उसको एक पतली से रस्सी से बांध के रखते हैं। यू नो व्हाई? क्या होता है ना, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत क्यूरियस होता है। उसको लगता है यार मैं यहाँ जाऊं, मैं जंगल में वहां जाऊं, मैं ये चीज करूं, मैं वो चीज करूं। उसकी क्यूरियोसिटी होती है, जैसे हमारे अंदर होती है बचपन में यू नो, एज चिल्ड्रन वी नेवर फियर्ड ऑफ एनीथिंग, नो वन इज। आप हो सकता है कॉकरोच पकड़ लेते हो, छिपकली पकड़ लेते हो, ये बड़ी बड़ी चीजों का डर, ये भूत है, ये है, ये तो बड़े में जाके पता चलता है कि अच्छा इससे डरना था। तो बचपन में हमें तो चीजें पता नहीं होती। सो या वी आर वेरी इनोसेंट, our brain is completely free of all the chains and barriers, we can achieve anything when we were children। तो वो भी यही सोचता है, तो उसको बड़ी मोटी चेन में बांध के रखते हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना, तो हाथी को और चेन्स में बांध के रखा जाता है। उसके दिमाग में ये कंडीशन करा जाता है कि तू भाग ही नहीं सकता, ये चेन तेरे को पकड़ी हुई है, तू भाग ही नहीं सकता। जब वो फुल बड़ा हो जाता है ना, तो उसको वो चेन की जरूरत नहीं पड़ती, उसके दिमाग में सेट हो जाता है मैं भाग ही नहीं सकता। तो उसको छोटी वाली चेन भी लगती है कि यार वो रस्सी भी उसको नहीं भागने देगी, जबकि वो एक बार में उसको तोड़ के ही कैन बी फ्री, यू नो। बट वो ऐसा करते नहीं है, ये हमारे साथ होता है। दिस इज व्हाट हैपेंस टू अस, स्पेशली वुमेन। हमारे साथ बचपन से कंडीशनिंग की जाती है, बेटा ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते आप, आपकी शादी हो जाएगी, यू नो यू कैन नॉट, यू नीड टू हैव अ बेबी। See, family is very important, I'm not saying that, but that doesn't mean that you cannot be an individual, you cannot be a performer, right? So वो कंडीशनिंग जो ना हमारे दिमाग में वो चेन्स बंधी हुई है, जैसे हाथी के गले में वो चेन्स बंधी है ना, हमारे दिमाग में वो चेन्स बंधी है। So I would really like to request all the women who are listening to me, I think we have 72 participants today, to break those mental chains in your head। वो ना चेन्स को तोड़ दो, तुम कुछ भी कर सकते हो यार। तुम्हें बचपन से जो बताया गया है ना, वो सब झूठ है, सब कुछ झूठ, इट्स ऑल रॉन्ग। तुम जो सोचते हो ना, तुम वो कर सकते हो, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? इसी में मैनिफेस्टेशन की बात आती है, आई स्पीक अबाउट दैट लेटर ऑन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आई विल हरी अप। इससे पहले एक स्लाइड थी, सरस्वती, इससे पहले एक स्लाइड आपने मिस कर दी। नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्निंग एक ऐसा स्किल है ना, जो आप कभी आपको उसके लिए कहीं जाना नहीं है, आपको जरूरी नहीं है, आपको अपने बिस्तर से भी नहीं उठना है। कई बार तो आप सिर्फ एक बुक पढ़कर कितनी सारी चीजें जान सकते हो। और अगर ऐसे दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे सर्वज्ञानी, जिनको लगेगा कि यार उनको सब आता है, मिस्टर नो इट ऑल, मिसेस नो इट ऑल, दे नो एवरीथिंग, बट ट्रस्ट मी, दुनिया में व्हाट यू जस्ट नो इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। किसी ने बोला था, आपको जो पता है वो सिर्फ एक आइसबर्ग का टिप है। व्हाट इज द होल थिंग इनसाइड, वी डोंट नो। उसको एक्सप्लोर करने के लिए सीखो, नई चीजें सीखो, लर्न करो, बुक्स पढ़ो। आई रिकमेंड सोलो ट्रैवलिंग अ लॉट। मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ जितना आई नो। अ लॉट ऑफ women, a lot of girls will say मैम हमारे पेरेंट्स परमिट नहीं करते। कन्विंस करो उनको, अपने आप में विश्वास रखोगे, वो तुम पे विश्वास रखेंगे। when you travel solo you learn so much about world and culture, and जो तुम्हें कोई बुक, कोई इंटरनेट की कोई वेबसाइट, कोई सोशल मीडिया नहीं बता सकती, कोई ट्रिपोटो नहीं बता सकता, जो तुम जाकर खुद सीखोगे, खुद लर्न करोगे अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ बात करके। सो यस, आई वुड रियली लाइक टू रिकमेंड दैट टू ऑल द women, that start exploring the world, start learning new things and never stop it। कोई उम्र नहीं होती कुछ भी सीखने की। आज भी आप मेकअप 16 साल में सीख सकते हो, 60 साल में सीख सकते हो। आप एंटरप्रेन्योरशिप 16 साल में सीख सकते हो, 60 साल में सीख सकते हो। You just need to be optimistic about it, right? Next. Empower those around you. It is very important. ज्यादा नहीं है संस्कृति, 12 ही है, don't worry। हाँ, so empower those around you। आपने ये चीज सुनी है कि औरतें औरतों को पसंद नहीं करती? सबने सुना होगा ये, राइट? आई थिंक यू नो, राइट संस्कृति, आपने भी सुना होगा ना कि यार हर लड़के को पता है ये वाली बात कि एक औरत दूसरी औरत को कभी सपोर्ट नहीं करेगी। इतनी गलत बात है ये, आपको पता है ये इस बात पे दूसरा, या
People say like क्या girls are say? bitches, they are bitches and all. People say like girls are bitches. They bitch about themselves Yes, only. yes, that's what. So आप सोच नहीं सकते हम अपने ऑपोजिट जेंडर को कितनी पावर दे रहे हैं अपने ऊपर. उनको पता है, you know, males, they know that females don't get along and they are using this against us. You know, we don't realize it, but they do it. I'm telling you, अगर जिस दिन एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करना सीख जाएगी और एक दूसरे को एम्पावर करने लगेगी ना, हमें कोई रोक ही नहीं सकता यार. मैं बता रही हूँ, मेल्स के लिए इक्वालिटी राइट्स बनेंगे, मेल्स को रिजर्वेशन मिलेगा, फीमेल्स को नहीं. बिकॉज वी आवरसेल्व्स इन, हम इतनी बड़ी पावर है ना, ये हम रियलाइज ही नहीं करते. इट्स दैट वी वांट टू शोकेस आवरसेल्व्स कि यार हम एक दूसरे को गिराकर ऊपर उठना चाहेंगे. नहीं यार, अपने जेंडर को ऊपर करो, एम्पावर दोज अराउंड यू. एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है. यू नो, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जब आप किसी का घर चलाते हो ना, जब आप सैलरी देते हो ना महीने के आखिरी में, आपको जो खुशी मिलती है वो शायद आपको शिनेल का बैग या ब्यूटी कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद के भी नहीं मिलेगी. यू विल नेवर फाइंड दैट सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट एनीवेयर. बिकॉज यू नो किसी का घर चल रहा है, यू नो आप किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो. दैट फीलिंग इज समथिंग इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. You can just experience it. So empower those around you. Next. Don't forget to develop brand you. आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपने प्रोडक्ट पे भी और अपने ऊपर भी. See, as entrepreneurs, as startup people, I'm telling you, we are not funded people. I'm not a funded startup. I'm a bootstrap startup. मैंने खुद से पैसे लगा के अपना बिजनेस चालू किया. तो मेरे पास मार्केटिंग का इतना पैसा नहीं था, इतना स्कोप नहीं था कि मेरे पास भाई 3 करोड़ है, मैं सलमान खान को बुलाकर एडवर्टीजमेंट करवा लूं. नो, आई नेवर हैड दैट ऑप्शन विद मी. So मैंने क्या, what I'm doing is, and what I'm learning from other entrepreneurs is, build yourself as a brand first. Your product will itself become a brand. For example, Steve Jobs, Apple came next. Steve Jobs ने अपने आप को पहले ब्रांड बनाया था, उसके बाद एप्पल केम इन. इंडियन एग्जांपल्स में आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को काफी लोग सुनते होंगे शायद. He became a brand himself, then he started his जो भी उनका वर्क है, I don't know the name of his company, but इसी तरीके से संचित महेश्वरी भी हैं. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे. So the easiest and the quickest way to brand your company is to brand yourself first. आप अगर अपनी कंपनी को विजिबल बनाना चाहते हो तो अपने आप को पहले विजिबल बनाओ यार. मतलब you are selling yourself first and then your product and then your company. Please remember that. So अपने आप को उस तरीके से बनाओ ताकि you know people will start knowing you, and once they know you, they'll know your product also. Next, I feel mistakes are the trophies. I always feel कि जो मेरी गलतियां हैं उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया. जो मैंने आपको बताया, फेलियर एक की होती है जो कि बहुत जरूरी होती है. मिस्टेक्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. आपको यू वेयर इट लाइक योर ट्रॉफी, उसको साथ में लेके चलो, वो आपको बताएगी कि कहाँ गलत नहीं करना है. एंड नेक्स्ट, learn to take responsibility too. As an entrepreneur, as a startup entrepreneur in fact, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी आपने गलतियां करी है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. In terms of business decisions, in terms of financial decisions, in terms of capital investments, everything, you need to start taking responsibility for your work. Next, संस्कृति, next. Yeah, always say, learn to say no. ये हर जगह पर सिखाया जाता है. स्कूल में नहीं सिखाते, कभी बचपन से तो कभी नहीं सिखाते, लेकिन हाँ वर्क एनवायरनमेंट में सिखाया जाता है कि यार नो बोलना सीखो. लड़कियां स्पेशली नहीं बोल पाती. अरे यार वो सर ने बोल दिया था करना है. सर, we try to be too sweet for everybody. No, you have your own space to say no or yes to anything. You need to first be comfortable with everything on your own and then you can do किसी और का काम, है ना. तो हमेशा अगर नई चीज अच्छी लग रही है तो say no.
कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. You can very well say no and be at a respectful position. It is your right. Right? Next slide, please. So these are the few myths and stereotypes about entrepreneurship. I'll just quickly go one by one. People say that ये सारी myths हैं. लोग बोलते हैं कि entrepreneurs don't have a personal life. गलत बात है, ऐसा नहीं है. Entrepreneurs की personal life होती है, but personal life में भी आप सोच रहे होते हो चीजों के बारे में. Your brain is never stopping. ऐसा नहीं है, you don't have time. You have time to think about all the good things in life, but it is a constant process in brain. दिमाग में चलता रहता है. So you have a personal life. What is the time, Sanskriti? 42. Right now? Yeah, 42, right? 3:42. I think I'm going to just read it and just finish it off so that Reina ma'am can take it over, because we both have meetings. So yeah, entrepreneurs take a lot of risks. ऐसा बोलते हैं बिजनेस में रिस्क होता है, वो अभी स्कैम में सिखाया ना, रिस्क है तो इश्क है, राइट? ऐसा नहीं है. रिस्क्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड. यू कैन कैलकुलेट इट. एनालिसिस, कैलकुलेशन. अगर आप एक्चुअली फोकस होके काम करोगे तो कोई रिस्क अनकैलकुलेटेड नहीं है, right? Third is entrepreneurs are only motivated by money. No, I am not one of the entrepreneurs who's motivated by money. I'm motivated by respect. I'm motivated by freedom of creativity, to create something. You should be motivated. आपका higher purpose होना चाहिए पैसों के ऊपर का, तब शायद वहां जा पाओगे, right? Entrepreneurs raise money from venture capitalists. No, it's a myth. I'm a bootstrap startup. मैंने अपनी नौकरी की कमाई से अपना बिजनेस चालू किया है. छोटा चालू किया है, 3 साल हुए हैं. बट या आई एम प्लानिंग. फंडिंग मिल जाएगी तो अच्छी बात है, बट नहीं मिलेगी तो भी यू कैन सेल्फ सर्वाइव. जो खुद से, अगर यार एक बात बताओ, अगर आप खुद से नहीं सर्वाइव कर पाओगे तो इन्वेस्टर के पैसे से कैसे कर पाओगे? यू हैव टू बी आंसरेबल टू योर इन्वेस्टर ऑल्सो समडे, right? So learn to rotate your money, learn to set a rolling in your business on your own. Entrepreneurs have great ideas. No, this is bullshit. Not everyone has great ideas. कई लोग दोबारा भी खोलते, जैसे 2 आइडियाज एक साथ भी वर्क करते हैं. इट इज ऑल ऑन एग्जीक्यूशन. आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो किसी भी आइडिया को. आप बहुत अच्छा आइडिया को बहुत गलत तरीके से बिल्ड कर उसको खत्म कर सकते हो, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके यू कैन बिकम बिग. इट इज ऑन यू. Anyone can be an entrepreneur? No, not everyone can be an entrepreneur. You need to have that mindset. You need to have that fear that if you won't reach your goals, then how will you survive, right? That is important. Entrepreneurs have formal training and education. No, I'm an automotive design engineer. Never learned management. Never learned how to start a company. Never learned management, resources, skills, nothing. But I'm doing it. सीखने से बनता है, करने से आता है. तो करो यार, सीख जाओगे. Entrepreneurs are young. KFC का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. He started his business, the founder of KFC started his business very late at the age of 75. So हम उनकी तरह बन नहीं सकते, लेकिन उनसे मोटिवेशंस ले सकते हैं हमेशा. So people who have built themselves, you can get inspired. You can start setting your things accordingly, right? Entrepreneurs don't quit until they succeed. No, they quit very easily. आज 80% startups खुलते ही बंद हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो क्विट कर देते हैं. लेकिन आपको पता होना चाहिए एक क्विट करके दूसरे पे जाना है. And last is entrepreneurship is genetic. It is not. You can be a service class. You can be born into a service class family and still be an entrepreneur. So my message to all the beautiful women out there is to just go ahead with it and learn as much as you can. And I've shared my LinkedIn details and my number also in the PPT. Sanskriti, you can, if anyone has, you can share it on chat box. Yeah. Okay. And anyone can connect with me over LinkedIn personally also. And let me know. I provide mentoring sessions as well, one-on-one. So happy to help everyone. And thank you so much, Shikha and Srajan Welfare Society, and Sanskriti. You can go ahead. Thank you so much, Shivangi ma'am. It was really nice to listen to you. It was very helpful for all of us.
and for the young women who all are here and who wants to start their like organizations or business. Thank you so much.